किसी की सेविंग्स हो गई 10 लाख की, उस फंड्स के साथ क्या करना चाहिए? रिस्क लेना ही नहीं है। अगर मान लो मेरे को मार्केट का उतना नॉलेज नहीं है या रिस्क लेना ही नहीं है, तो सबसे बेटर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करिए। मेरी वाइफ बोलती है मुझे गोल्ड या ज्वेलरी खरीदो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मेरे अकॉर्डिंग आई शुड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। If wife wants to invest in gold, there's nothing to be surprised of because there is favor in gold at the moment. So gold prices are going up. Rather than gold actually has outperformed massively any other asset class. पहले का फिलॉसफी क्या चलता था कि जमीन में इन्वेस्ट करो या सोना में इन्वेस्ट करो। गोल्ड वाज ऑलवेज ए सेकंड करेंसी। अगर तुमको फिजिकल गोल्ड परचेज करना, मान लो तुम ज्वेलरी जाके परचेज करेगा आज के डेट में, तो मेकिंग चार्जेस लगेगा। तो जब ये तुम बेचेगा तो टैक्स लगेगा। लेकिन अगर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड परचेज करेगा 2.25% का अराउंड को इंटरेस्ट मिलेगा, प्लस वो जब जाके मैच्योर होगा तो टैक्स फ्री होगा। Welcome back to our second episode of three-part series, जहां we are discussing कि हमें कैसे इन्वेस्टमेंट करने चाहिए, कैसे ग्रो कर सकते हैं, so that we maintain our standard of living or at least try and increase our standard of living. So this episode is majorly for people who are above the age of 30 and below the age of 50. उनके लिए हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। इस एज में जनरली काफी लोग स्टेबल हो जाते हैं, दे हैव अ स्टेबल जॉब और अ स्टेबल करियर, उनको पता है उनका क्या इंक्रीमेंट या क्या सैलरी रहेगा, और इस एज तक काफी सेविंग्स भी हो जाती है हमारी जनरली इन एटलीस्ट इन इंडियन हाउसहोल्ड जो आईटी या मार्केटिंग कहीं अच्छे कॉर्पोरेट में काम करें, उनकी सेविंग्स हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी की सेविंग्स हो गई 10 लाख की, जो आप उसको इमरजेंसी फंड पकड़ लो या फिर सेविंग्स ही पकड़ लो, उसको उस फंड्स के साथ क्या करना चाहिए? 10 लाख के फंड के साथ या तो इन्वेस्ट कर दे इक्विटी या मार्केट में डाले या पड़ा रहने दे एज सेविंग्स इन बैंक अकाउंट, व्हाट शुड ही डू? Someone who has 10 lakh rupees in savings, right? Now, and he's not invested in any kind of mutual fund or is not invested anywhere, but just kept his money in savings, right? That shows the psychology of the person. Risk averse person, he doesn't want to take risk, and which is why he kept his money in savings account. What if he's investing also and still he has somehow savings? So, but still, I mean, looking at the various investment, mantras or other that we have just discussed in the previous episode, that anyone who's been working for 5-7 years and he's built that pool of cash in savings account, so either he's a very high earning stream person, right, or he's averse to risk. Let's accept that. So if he's averse to risk, then he will have to design his investment going forward in a manner which is risk averse. So he should go for dynamic funds, as we discussed earlier, where he will be investing in fixed income as well as in equity, so 70-30 kind of mutual fund. If he is willing to take risk, then he can go for mid-cap schemes as well, mid-cap and small-cap schemes in the mutual fund, right? So he can invest there. But the only thing is keeping money in savings account is definitely not advisable. He should start allocating more money in equity mutual funds. So why is keeping funds in savings account not advisable? So he should keep money in savings account to the extent of his requirement in terms of any kind of uncertainties, So if the uncertainty is defined in terms of his, say, job losses or medical requirement, which is generally the two causes, there can be multiple causes, other causes, but these are the two main causes. So in that case, it totally depends, because we don't know how much he's earning or what his earning stream is or source of income is. But let's assume that he's built at 10 lakh, so he's definitely a high source of income. He has high source of income because he's also investing, as you said. So he should definitely keep only 3 months to 6 months of his requirement, because he's in a age group where he is most maybe eligible to get up an alternative job or work, sooner than later. So 3 months to 6 months is advisable for him to keep, which can work out to be maybe 3 lakh or 5 lakh rupees. And the incremental amount which is there, he can always invest in mutual fund or in any high yielding asset class. There are so many asset classes, so many mutual funds,
liquid funds, kahan at this age group investing should be the best part? So liquid fund is basically for absolutely two kind of investors. One, that you have an excess liquidity and you are in requirement of them in the near future, in the near term. So generally the corporates do it, or HNIs, ultra HNIs do it. You know, for individuals, you don't invest in liquid fund unless and until you are investing as a in times of need. I mean, you want that money in times of need. You know, only then you invest. Otherwise, there's no point of investing in liquid fund. And the rest should always go in high yielding asset classes. High yielding asset classes, one is obviously your equity and equity oriented mutual fund. So someone who doesn't have much knowledge of equity Mm-hmm. is not very risk averse. So should he invest all? Is it possible that all that money he can invest at once in a single SIP instead of It is always advisable to have at least 3 to 4 SIPs. 3 to 4 different type of SIPs and different type of diversified, or maybe some thematic also, because if he's young and if he's willing to take risk, so he can go for some high yielding SIPs as well. But obviously, I mean, of good fund houses who has a proper good record, and in the hope of getting high returns or high yields, you should not fall prey to some kind of chit funds and all, which has been practiced in the past, and we've seen that investors, every kind of investors, have lost money there. So you should not fall into trap of such kind of investments. Ideally, if someone has excess money, he should invest in SIPs, mutual funds, which give good returns. Absolutely, he can go for SIP, or as you said that he has excess money so for him, he can keep having that money, excess money there, okay, and allocate every month or do a SIP where his money will be deducted in a systematic manner and go into mutual funds, or he can do a lump sum investment as well. अगर रिस्क लेना ही नहीं है, अगर मान लो मेरे को मार्केट का उतना नॉलेज नहीं है या रिस्क लेना ही नहीं है, तो सबसे बेटर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए. जितने बड़े फंड हाउस है. तो इंडेक्स फंड क्या है? इंडेक्स फंड मतलब कि वो पैसा जो आपका, जैसे निफ्टी है, सेंसेक्स है, तो ये सब का इंडेक्स फंड होता है. मतलब उनके जो टॉप 50 कंपनी जो उसमें पैसा लगा दे रहे हैं, वो 50 ऊपर नीचे होंगे. जैसे जैसे आपका निफ्टी बढ़ेगा उस हिसाब से आपका इंडेक्स फंड बढ़ेगा. हाँ, बस जब आप इन्वेस्ट करें तो एक चीज ध्यान रखिएगा, आप एक बार फंड एक्सपेंस जरूर चेक करिएगा. जो भी आपके फंड हाउस है, फंड क्या चेक करना? जो भी फंड हाउस, मान लीजिए आप HDFC में इन्वेस्ट किया, कोई भी बड़े बड़े रिनाउंड फंड हाउस के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप उनका एक्सपेंस रेशियो जरूर चेक करिएगा. फंड एक्सपेंस क्या बेयर करता है, चेक करना चाहिए. वो इसलिए चेक करना चाहिए कि हर एक फंड मैनेज करने का, मान लीजिए आप कहीं भी पैसा डाल रहे हैं तो उसके फंड मैनेजर होते हैं, उनको पैसा जाता है, तो ये सब एक फंड हाउस का खर्चा होता है. वो वहाँ भी एम्प्लॉई होते हैं, उनके फंड हाउस मैनेजर है, तो उनको खर्चा देना पड़ेगा ना. तो ये फंड एक्सपेंस होता है, इसको फंड एक्सपेंस बोलते हैं. तो आप जब भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें तो आप फंड एक्सपेंस जरूर चेक करें कि जिसका फंड एक्सपेंस कम हो, क्योंकि निफ्टी इंडेक्स फंड वो होता है उसमें ब्रेन नहीं लगता है कि हाँ निफ्टी इंडेक्स फंड में डाल दी, ये अपने आप मूव होते रहेगा. जो टॉप 50 कंपनी उसमें अपने आप इन्वेस्टमेंट होते रहेगा. तो सिर्फ फंड एक्सपेंस चेक करें. जिसका फंड एक्सपेंस होना चाहिए, फंड एक्सपेंस एक कोई पर्सन नहीं, सबका अलग अलग होता है. फंड एक्सपेंस हर फंड का अलग अलग होता है. आप ये डिसाइड नहीं कर सकते ये फंड का इतना ही होना चाहिए. ये उसके फंड मैनेजर पे डिपेंड करता है, उनके रिटर्न क्या बैठा है उस पर भी डिपेंड करता है. जितने बड़े फंड हाउस है, फंड एक्सपेंस बेसी रहेगा उनका, ओके. वो क्वालिटी आपका रिटर्न वो बना के दे रहे हो. जितने अच्छे प्रोडक्ट, जितने रिस्क जितना रहेगा उसका एक्सपेंस इतना बड़ा रहेगा. इंडेक्स फंड में कोई इतना रिस्क नहीं होता है, तो इसलिए उसका फंड एक्सपेंस डाउन साइड में रहता है. लेकिन हर फंड हाउस का अलग अलग होता है. तो जितना अगर मान लीजिए लास्ट 10 ईयर में निफ्टी अराउंड 12% का CAGR से बढ़ा, तो आपका भी 11.5% से CAGR का रिटर्न बढ़ेगा. जितना आपका निफ्टी बढ़ेगा उससे कुछ बेसिक्स पॉइंट आपका कम रिटर्न आएगा. तो इसमें कोई ब्रेन नहीं लग रहा. ओके, अगर या तो आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या मिड कैप, तो डिपेंड करता है लार्ज कैप कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे आएगा. तो इसमें कोई ब्रेन नहीं है इंडेक्स. फॉर एग्जांपल जो जिसके पास 10 लाख सरप्लस अमाउंट है, उसने एक EMI ले रखी है फॉर हिज होम, सो शुड ही इन्वेस्ट वो जो मनी है,
क्या उसको वो लोन का अमाउंट कम करने के लिए इन्वेस्ट कर देना चाहिए कि समझ लीजिए 1 करोड़ का लोन है तो हम सीधा 10 लाख दे दिए और लोन का अमाउंट 90 लाख कर दिए, तो वो बेनिफिट आएगा या क्या करना चाहिए उसको फिर? Either he can reduce the tenure of his loan, the EMIs which he's paying. Generally, if he has a 20 year of EMI to pay and the remaining period is say 15 years, okay, he's taken a 20 years of EMI and the remaining period is say 15 years. So he can reduce that by 3 years and make it 12 years. Okay, in that case, maybe his EMI amount will go up a little bit, but the tenure will come down, So that will be doing away with the EMIs sooner than what earlier he was supposed to do that. So that is one way of doing it. Second is he can invest. Is there any benefit अगर tenure reduce करते हैं? There's definitely benefit because his tenure is coming down. The interest will come down basically. The amount of interest that he will be paying will definitely come down. जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो कंपाउंडिंग के बेसिस पे होता है। तो यहाँ पे अगर आप अपना टेन्योर कम कर रहे हो तो इतना कंपाउंड का इम्पैक्ट जो वो आपका बचेगा। तो बेटर है आप ईएमआई का टेन्योर को कम करें, ईएमआई अपना इंक्रीज करे और ईएमआई का अगर ईएमआई इंक्रीज करेंगे तो आपका टेन्योर कम होगा। तो ये कंपाउंडिंग इम्पैक्ट जो होता है, कंपाउंडिंग इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। जैसे अभी हम लोगों ने पहले एपिसोड में जो बात किया था कि अगर आप 1000 का एसआईपी कर रहे हैं तो आपका 35 इयर्स के बाद अगर बनता है तो 1.42 का राउंड बन जाता है, 1.42 करोड़ का राउंड आपका फंड बन जाता है, क्योंकि ये कंपाउंडिंग कारण हो रहा है। इसलिए आप लोन का टेन्योर कम करें ताकि वो कंपाउंड जो आपका कंपाउंड इम्पैक्ट है वो कम हो जाए। इसलिए लोन का टेन्योर कम करना चाहिए और ईएमआई जो आप दे रहे हैं वो इंक्रीज करना चाहिए। ओके, तो सरप्लस फंड को अगर हम लोग ईएमआई इंक्रीज कर देते हैं पर मंथ, ईएमआई का वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं तो हमारा टेन्योर कम हो जाएगा, जिससे हमारा सेविंग्स ज्यादा होगा। सेविंग ज्यादा होगा क्योंकि कंपाउंड का इम्पैक्ट बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, तो कंपाउंड का इम्पैक्ट कारण आपका सेविंग्स बचेगा। ओके, सो इन अ वे बेनिफिट ही होगा हमें इन द लॉन्ग रन। हाँ। मेरी वाइफ बोलती है मुझे गोल्ड या ज्वेलरी खरीदो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मेरे अकॉर्डिंग आई शुड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। सो what is the right path towards it? So Shreyans, like I have been in markets for 30 years, almost more than that, and I have seen each and every asset classes have its light under the sun, in the sense that there are periodical euphorias in certain asset classes, and gold I consider to be one of the asset class. If wife wants to invest in gold, there's nothing to be surprised of, because there is favor in gold at the moment. So gold prices are going up, and everyone actually wants to, see a pie of their investments going up more than any other asset class. And gold actually has outperformed massively any other asset class. So there's no wrong in that. But the wrong is, or rather the mistake lies in the historical context, if you want to see it that way. If you see the price of gold, right, it has a very patchy kind of a movement. Like it goes up for a couple of years, then it goes for a hibernation for multiple years. Maybe for 5, 6, 7 years, it doesn't move at all, right? So if wife wants to put money in gold at the moment, most probably she is swayed, or rather she is convinced by the fact that she will get a better return in gold if she puts it now. That's number one. She has tasted that return that she may have actually taken many years back, maybe with your knowledge or without your knowledge, right? So she thinks it's to be wise to put money there. But the same thing is when you think any kind of investment in a vacuum, in the sense that you are kind of, in a zero hour, where you take into consideration various factors with a longer term perspective, right? कि 10 साल में क्या होने वाला है, अभी जो 1 साल या 2 साल में हुआ वही 10 साल में रिपीट होगा या नहीं होगा, वो कोई नहीं जानता है. बट एक चीज हम जरूर जानते हैं कि गोल्ड हैज गिवन अ वेरी गुड रिटर्न एंड सो हैज म्यूचुअल फंड्स, राइट? So if you see the mutual fund return, they would definitely have beaten gold return over a longer period of time we are talking about. And in the context of, say, Indian investments, I will not give you figures of 50 years or 100 years because I don't have the figures, but I can tell you that somebody who has put in a rupee in
1979 in Sensex, right, is sitting today how much? Or rather 100 rupees, because Sensex listed at 100. So Sensex is above 80-85,000 now, right? So 79 से लेकर अभी तक कितना हुआ? 100 का चीज कितना हो गया? 85,000. गोल्ड उतना बढ़ा है क्या? बढ़ा है, बट उतना नहीं बढ़ा है. तो CAGR रिटर्न जो है वो अभी भी कम है, नंबर 1. नंबर 2, गोल्ड डेफिनेटली देखने में बहुत अच्छा लगता है. इट्स रियली वेरी अपीलिंग. वी ऑल नो दैट. Very shiny, it glitters, looks good. As long as you hold it, feel very good. Good fill factor is there. But the point is that there are two things. One is the cost of keeping it, because if you're keeping it at a house, then you have that headache. And if you keep it in a locker, then you have to pay that whatever fee you want to pay. That's number 1. Number 2 is it's not yielding you any returns in terms of dividends or anything. Although we have sovereign bonds which has started giving, but these are all momentarily or temporary. It was not doing say 10-15 years back. So ultimately, equity investment is something we cannot do away with, right? And we have to allocate that. So the best thing is to listen to wife, put some money in gold, because that's one class. If anyone says that he's an expert, then definitely that person has really worked very hard to understand what the gold is all about. Not everyone can predict. One can predict in instances with data. मैं एक डेटा देखकर बता सकता हूँ कि हाँ 2012 से लेकर 2017 तक गोल्ड का रिटर्न कुछ नहीं आया, लेकिन वही 2009 से लेकर 2012 तक एक मैक्सिमम रिटर्न आया था. सेम थिंग हैपेंड इन लास्ट 2 years. Gold which was 2000, I'm quoting in terms of global price, say $2,000 per ounce, right, 2 years back, is above 4,000 now. It's doubled 2 साल में, right? No asset class is doubled, isn't it? Barring equities, individual equities may have actually quadrupled or 10-15 times ही बड़ा होगा, लेकिन indexes and all they have not, right? So obviously the allocation part should be taken care of both by your wife in gold, some part of it, and the major part of it should go for your equity mutual funds. हम लोग के जो ग्रैंडफादर थे या पहले का फिलॉसफी क्या चलता था कि जमीन में इन्वेस्ट करो या सोना में इन्वेस्ट करो. गोल्ड वाज ऑलवेज ए सेकंड करेंसी. अगर मान लो आज के डे में तुम्हारी वाइफ बोली कि मेरे को ज्वेलरी परचेज करना है, पहले उससे पूछो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए करना है कि उसको अपने डेली यूज के लिए करना है. Right. अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए उसको करना है तो गोल्ड का होराइजन जो इन्वेस्टमेंट का, तो ये कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए, हमेशा लॉन्ग टर्म होना चाहिए. अगर तुमको फिजिकल गोल्ड परचेज करना, मान लो तुम ज्वेलरी जाके परचेज करेगा आज के डेट में, तो मेकिंग चार्जेस लगेगा, एक्सपेंस आ गया. इससे बेटर है कि तुम गोल्ड ETF परचेज करो. सोना ही खरीद रहे हैं हम, भले फिजिकल फॉर्म में नहीं खरीद रहे हैं, हम ऑनलाइन फॉर्म में कर रहे हैं, डीमैट फॉर्म में खरीद रहे हैं. इससे बेनिफिट क्या है? एक तो तुम्हारा जो मेकिंग चार्जेज है वो बचेगा. सेकंड, एक सेफ्टी इशू बहुत बड़ा है. अगर तुम मान लो 10 लाख या 20 लाख का गोल्ड खरीदता है, गोल्ड जो रखेगा बैंक लॉकर में रखेगा, मेंटेनेंस लगेगा, सेफ्टी इशू बहुत बड़ा है. या फिर गवर्नमेंट का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड चलता है. अगर मान लो गोल्ड ETF रहा वो तो मार्केट के अनुसार बढ़ेगा, जैसे गोल्ड का जैसे दाम बढ़ा वैसे ETF बढ़ेगा. लेकिन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ऐसा चीज है कि वो साल का तुमको 2 से 2.25% का ब्याज भी देगा, इंटरेस्ट भी देगा. ये दोनों कैसे खरीदी? जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी तुम ऑनलाइन डीमैट में परचेज कर सकता है. ये गवर्नमेंट का बॉन्ड है. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड डीमैट गवर्नमेंट का बॉन्ड है, आज भी खरीद सकता है तुम. और एक तो तुम्हारा ब्याज का इंटरेस्ट मिलेगा तुमको 2.25% साल का ब्याज मिलेगा, प्लस जब ये रिडेम्पशन होगा या मैच्योर्ड होगा तुम्हारा सॉवरेन गोल्ड वो टैक्स फ्री होगा. ओके. अगर मान लो आज के दिन में तुम ज्वेलरी परचेज करता है या गोल्ड ETF परचेज कर रहा है, तो जब ये तुम बेचेगा तो टैक्स लगेगा. अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराउंड 12.5% है. लेकिन अगर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड परचेज करेगा, एक तो प्लस बेनिफिट है 2.25% का अराउंड तुमको इंटरेस्ट मिलेगा, प्लस वो जब जाके मैच्योर्ड होगा तो टैक्स फ्री होगा. तो इसमें कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी है? कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं है. अराउंड लाख रुपए का अराउंड ऐसा होना चाहिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट मिनिमम. एक लॉट साइज होता है इसका, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का एक लॉट साइज होता है, एक लॉट परचेज करना पड़ेगा तुमको.
तो वो डिपेंड करता है एक लॉट का क्या वैल्यू है। तो अगर तुम्हारा गोल्ड का होराइजन की मेरे को आज रिक्वायरमेंट नहीं है पैसा का, अगर मेरे को 10 साल के बाद का रिक्वायरमेंट है, तो गोल्ड बॉन्ड सोवरिन गोल्ड में इन्वेस्ट करो। एक तो इंटरेस्ट मिलेगा, प्लस तुम्हारा जो जब वो मैच्योर्ड होगा वो टैक्स फ्री होगा। अगर तुम्हारा इतना बड़ा होराइजन नहीं है, 5-6 साल का होराइजन है, तो गोल्ड ETF परचेज करो। फिजिकल गोल्ड, अगर तुम्हारा इन्वेस्टमेंट अप्रोच है तो फिजिकल गोल्ड परचेज नहीं होना चाहिए। दोनों चीज एक ही है, एक गोल्ड के फॉर्म में, एक कागज के फॉर्म में। एक फिजिकल है, हाथ में दिख रहा है, एक कागज के फॉर्म में। दोनों चीज का सेम वैल्यू है। फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस या तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद लो या फिर गोल्ड ETF आती है। Gold ETF, और correct. पर अगर किसी को ज्वेलरी चाहिए फॉर देयर नीड, अगर नीड होता तो आज के डेट का नीड होता तो आज का क्या भाव है क्या नहीं वो नहीं देखते हम लोग। नीड होता है तो आज नीड है तो आज जाके खरीदेंगे। अभी दिवाली गया, दिवाली में तुम परचेज किया ही होगा कुछ ना कुछ, या अगर गोल्ड परचेज किया होगा या सिल्वर, उस समय तो रेट नहीं देखेगा ना। नीड तो नीड होता है। अगर ऑनलाइन खरीद लेते हो तो हमारा मेकिंग चार्जेस तो बच ही रहे, प्लस मंथली उसको जो सिक्योर रखने का टेंशन भी रहता है, टेंशन भी रहता रहता है, वो भी हमारा सेव हो जाता अब लॉकर में डाला तो बैंक बार बार जाके चेक करेगा कि है कि नहीं है। एक वो साइकोलॉजी हो जाता है कि है कि नहीं मेरा है। फिजिकल गोल्ड है तो कागज के फॉर्म में वो अगर चोरी हो जाए कोई भी ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे डीमैट अकाउंट से तो वो निकल नहीं रहा ना। इसलिए बेटर है कि हम ऑनलाइन गोल्ड परचेज करें। सॉवरेन Right. गोल्ड में तो टैक्स भी नहीं लगेगा, तो बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर सोवरिन गोल्ड तब है, हाँ ऐसा है, सोवरिन गोल्ड का तुमको पहले बेचना है, इमरजेंसी अगर तुम बेच सकता है, लेकिन वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर वो उसका जितना लॉकिंग पीरियड है वो रखेगा तो जाके Tax- जब वो मैच्योर्ड होगा तो टैक्स फ्री है। अगर इनकेस तुमको बीच में दरकार पड़ गया तो तुम ऑनलाइन वो बेच सकता है। आजकल काफी ट्रेंडिंग है कि टेस्ला का स्टॉक अगर खरीदे होते तो 10x 15x रिटर्न आ जाता, और पर इंडिया में ऑब्वियसली यूएस स्टॉक्स ट्रेड नहीं कर सकते कि यूएस स्टॉक्स खरीदे, और खरीदे तो कैसे खरीदे, या कोई इसका वे आउट है ताकि हम इतना जो अच्छा ग्रो हो रहा है वहाँ के कंपनीज उसमें भी पार्टिसिपेट कर सके। There are some platforms that give you the facility to buy US stocks. But the sane advice is to buy US stocks or global stocks through global oriented mutual funds in India. And there are a host of mutual funds who are doing it. Because we are definitely swayed, or rather the entire social media is swayed by what's happening currently, ticker by ticker, in certain stocks. And definitely most of these, the top 5-7 stocks in the US has been roaring over the last few years, especially in the last 2 years, right? So that is attracting a lot of attention of young investors, especially who wants to, churn in quick money. The obvious purpose is to churn in quick money. It's not that I want to invest and keep it for long term, right? That's not the objective. So that's a very risky proposition. That's number one. And number two is there are limits for investment in US stocks or any global stocks per se. So the best way to invest in global stocks or US stocks is to go by global mutual funds, oriented mutual fund, which gives you a platform, to have a bouquet of stocks or a host of stocks, number of stocks. देखो अगर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने पास 2 ऑप्शन है, या तो हम ग्लोबल म्यूचुअल फंड परचेज कर ले या हम डायरेक्ट इक्विटी में परचेज करें। मतलब मान लो कोई भी यूएस का स्टॉक हो गया या डायरेक्ट हम, मेरे को पता है, मेरे को मान जैसे तुम टेस्ला का एग्जांपल लिया, बोलेगा कि मेरे को टेस्ला का स्टॉक परचेज करना है, तो वो भी ऑप्शन है तुम्हारे पास। अगर तुम्हारे पास इतना फॉरेन का ग्लोबल का इतना नॉलेज नहीं है तो तुम डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट कर दिया, जो ग्लोबल फंड है, चाइना का ही फंड आता है, नास्डैक फंड भी आता है उसमें। हाँ, जब तुम डायरेक्ट इक्विटी परचेज करेगा तो गवर्नमेंट का नियम है, तुम 1 साल में, मतलब फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च, Right. 2.5 लाख से डॉलर तुम ज्यादा बाहर नहीं बेच सकता इंडिया के। लिबराइज्ड लिमिटेड में स्कीम होता है, एलआरएस स्कीम बोलते हैं, उसमें 2.5 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट, 2.5 लाख डॉलर से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो 2.5 लाख इन्वेस्टमेंट, 2.5 लाख डॉलर, अराउंड 2.25 करोड़ का अराउंड, इतना ही मैक्सिमम तुम इन्वेस्टमेंट कर सकता है एक फाइनेंशियल ईयर में, अप्रैल टू मार्च। ये फाइनेंशियल ईयर बेसिस पे कैलकुलेट होता है। तो 2.5 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट तुम नहीं कर सकते, 2.5 लाख डॉलर से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता है ग्लोबल मार्केट में, अगर तुम डायरेक्ट इक्विटी परचेज कर रहा है।
लेकिन अगर तुम म्यूचुअल फंड परचेज कर रहा है, जैसे नाजडक फंड परचेज कर रहा है, कोई भी बड़े फंड हाउस का नाजडक फंड या चाइना फंड, तो ये तुमको इंडियन रुपी में देना पड़ता है, तुम इसका लिमिट नहीं है, तुम इसमें चाहे जितना भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये $2.5 लाख का लिमिट तभी एप्लीकेबल होगा जब तुम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कि ये पैसा तुमको रिमिट करना पड़ेगा फॉरेन। तो इसमें फिर ट्रांजैक्शन चार्जेस भी आते हैं। ट्रांजेक्शन चार्जेस जाएगा, टीसीएस आएगा, अभी 20% का अराउंड टीसीएस है, तो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट है उसमें डायरेक्ट अगर इन्वेस्टमेंट करेगा तो, क्योंकि यहाँ से पैसा बाहर जा रहा है, मतलब फॉरेन रेमिटेंस हो रहा है, तो इसमें गवर्नमेंट का नियम। या तो सबसे बेटर है इंडियन करेंसी में तुम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, जो ग्लोबल फंड है उसमें इन्वेस्ट कर दो, बेटर, पैसा भी बचेगा। पैसा ही बचेगा, और तुम इसमें लिमिट नहीं है तुम्हारे पास कि कितना भी इन्वेस्ट कर सकता है तुम। And the other thing is that since most of the viewers are definitely geeks and young investors, so it's quite obvious that they would be investing small amounts or maybe not exactly 2 crores, you know. So in that case also it makes sense for them to go for the mutual Global fund route, global mutual funds. Wrap up this episode, and I've identified 3 major takeaways from this. If you have a lump sum amount of money and you also have an EMI, reducing the years of EMI is a better option. Correct. ताकि उस पे जो compounding benefit है वो हमें मिल सके. Right. Second is, if you are thinking of investing in gold rather than making a jewelry out of it, अगर purpose नहीं है jewelry लेने का, तो investing in gold ETF or gold sovereign bond is better. Right. And lastly, if you want to invest in US stocks or any other foreign stocks, going via the route of global mutual fund houses is better, since इसमें आपको कोई लिमिट नहीं है, and currency charges भी नहीं लगेंगे, ना TCS लगेगा, and obviously it is more research backed, जो हम लोग उतना रिसर्च नहीं कर पाएंगे. Absolutely. Okay. I hope you like this podcast, so please like and subscribe to our channel. We will be coming out with more such content